recording. Which topic we have covered in the last lecture? Which topic we have covered in the last lecture? Yes. Which topic we have covered in the last lecture? Students, be fast. क्या पढ़ा हम लोगों ने कल? क्या टॉपिक कवर किया इन द लास्ट लेक्चर? यस, हेलो. Yes, students, I am asking to you which topic? Relational algebra. Yes, okay, relational algebra we have covered in the last lecture. Okay, what is relational algebra? क्या है वो? What is relational algebra? फटाफट चलो. What is relational algebra and what we have covered in that topic? Language. Yes, it is a language, but which type of language? Procedure language. Okay, procedure language. It is a procedure language. Relational algebra is a procedure query language. Okay, procedure language तो है C plus C, programming C, basic C is also procedure language. Okay, but algebra is a procedure language, but procedure query language. Okay, query we will write the query in the relational algebra. Okay, then how many operations or which operation we can perform in the relational algebra and how? कैसे? कैसे? क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं इन द रिलेशनल अलजेब्रा में? विच टाइप ऑफ ऑपरेशंस आर देयर? यस, चलो बताओ. यस, सिलेक्ट, देन Project. Set. यस, Union. Set यस, intersection. Set difference. Or and one more is there. rename. Yes, very Rename. good. Yes, very good. Good. Okay. So all these type of operation we can perform in the relational algebra. Okay, but every operation have special symbol. Every operation have special symbol. Operators. Okay. Select के लिए which operators? Sigma. Yes, sigma. Very good. Projection के लिए? Projection, for projection. Yes, projection के लिए pi. Okay, yes. Okay. And what is the meaning of projection and select? Projection, what is the meaning of projection operation? क्या था? Projection operation क्या था? Yes, student, what is projection operation? Fast, चलो, I have to start new topics. Constraint will start करना है. Yes. Projection मतलब क्या? Show the list of attributes. Yes, very good. Okay, if you want to display specific attributes or specific column name, so you can use the projection. If you write the select, then all the columns will be displayed. If you write the attributes name with the projection operation, so you can write that particular column name or attribute name. You can display. Okay, so this is a difference. Union intersection is form. वो बताया आपको. Okay, two tables में से common records will be display in the intersection and all records from the two tables will be displayed in the किसमें होगा? यूनियन में. ठीक है. एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, यस, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी था, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी रोज फ्रॉम बोथ दी टेबल्स. ओके, टू और मोर टेबल्स का कॉम्बिनेशन, कॉलम रो का कॉम्बिनेशन करके द आउटपुट विल बी डिस्प्ले. रीनेम ऑपरेशन भी यू नो टू चेंज द नेम, बट द सिंटैक्स जो है दैट इज डिफरेंट है. न्यू नेम टू ओल्ड नेम. ठीक है, ऐसे आपको करना है इन द क्वेरी लैंग्वेज में, प्रोसीजर क्वेरी लैंग्वेज में. तो रिलेशनल अलजेब्रा था. Now next is constraint in DBMS. This is also unit 2 topic. ये भी unit 2 का ही topic है. Constraint in DBMS. In the unit 2 we have learned the basic queries. हमने learn किया. Then we have covered the keys, types of keys. Okay, what is keys, types of keys we have covered.
देन कीज कवर किया, and then last lecture हमने relational algebra cover किया. Now next topic is constraint in DBMS. Which topic? Constraint. Keys अलग है, okay. Then relational algebra अलग topic था. Now this is a new topic, okay, in the unit 2. Constraint in DBMS. What is constraint? Constraint मतलब क्या? Some rules, regulation, restrictions, okay, that we can impose on the database content and operation. What is the constraint? The constraints are the restriction. Constraints are the restriction imposed on the database contents and operations. Okay, now we can apply some constraint. मतलब null नहीं होना चाहिए. You have to must enter some values. Okay, yes, set of rules you can say. Yes, they ensure the correctness of the data in DBM of database. They ensure constraint ensure the correctness of the data in database. There is one more वहाँ पे एक advantage था data integrity. Okay, मतलब correct data must be entered in the database. So how we can correct? How can we enter the correct data? Using the constraint. Okay, using the constraint we can enter the correct data. फर्स्ट एडवांटेज था कि रिडंडेंसी रिमूव करना, ओके, डुप्लीकेशन रिमूव करना. तो वो हमने कैसे किया? प्राइमरी की अप्लाई करके, ओके, की प्राइमरी की अप्लाई करके वी कैन रिड्यूस द डुप्लीकेशन, रिडंडेंसी, ओके, रिड्यूस द रिडंडेंसी हमने रिड्यूस किया, डुप्लीकेशन रिड्यूस किया यूजिंग द कीज. नाउ नेक्स्ट एडवांटेज था कि करेक्ट डेटा स्टोर करना, ओके, इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी इज एडवांटेज है. वो एडवांटेज को फुलफिल करने के लिए वी हैव द कंस्ट्रेंट इन DBMS. ओके, वी हैव द कंस्ट्रेंट इन DBMS. So constraint are a set of rules. It is used to maintain the quality of information. Constraint ensure that the data insertion, updating, and other process have to be performed in such a way that data integrity is not affected. मतलब correct data ही ensure होना चाहिए. Thus, constraint is used to guard against accidental damage to the database. Okay. डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, करेक्ट डेटा स्टोर होना चाहिए, उसके लिए वी हैव द कंस्ट्रेंट. देयर आर टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट है, ओके, देयर आर टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ 5 different types of relational constraint. The first is domain constraint. Okay, I will explain on this all this constraint. Just now remember the names of constraint. Domain constraint. The second is tuple uniqueness constraint. The third is key constraint, entity integrity constraint, and referential इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. कंस्ट्रेंट मतलब क्या? रूल्स. डोमेन रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, टपल रिकॉर्ड से रिलेटेड कुछ रूल्स है, की रिलेटेड कुछ रूल्स है, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट and referential integrity constraint. Okay, these are the types of relational constraint. Today we will cover only theory. Tomorrow we will cover the practical regarding this. Okay, एक lecture में theory, second lecture में practical हम लोग ऐसे करेंगे. Okay, now we will learn these topics in detail. The first is domain constraint. What is domain constraint? The domain constraint define the domain or set of values for an attribute. Okay, domain constraint define the domain or set of values for an attribute. It specifies that the value taken by attribute must be the atomic value from its domain. For example, see, yeah, in student table there are 3 columns: student ID, name, and age. Okay, the student ID, name, and age. Okay, so student ID is 1, 2, 3, 4. Name is also correct, but age 20 है, यहाँ पे 21 है, this is 20 है, यहाँ पे क्या डाला है? A, but A is not allowed. Okay, A is not allowed. Why? Because age is only considered the integer value. Okay, so what is a domain? मतलब क्या? जो correct value age है तो age must be number. Age must be number. Name है तो name must be string होना चाहिए. In the name we cannot enter it 20 या तो कोई भी numbers we cannot enter in the name column. Okay, so this is a domain constraint. Okay, domain constraint मतलब क्या? Set of values for an attribute. So value decide किया है, वही value must be entered. Okay, the attributes must be atomic values from its domain. तो age के लिए क्या criteria set किया हुआ है? Age must be number होना चाहिए. Age must be number 0 to 100 या तो कोई भी जितना भी जो भी age है, but numbers, it must be numbers. तो domain value, age का domain value क्या हो गया कि numbers ही होना चाहिए. Name,
तो नेम जो है वो क्या होना चाहिए, इट मस्ट कंटेन द कैरेक्टर स्ट्रिंग्स की उसको कंटेन करना है। ओके, स्टूडेंट आईडी जैसे जो भी है कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड कैरेक्टर्स, तो वो उसका क्या होता है डोमेन वैल्यूज। तो व्हाट इज द डोमेन कंस्ट्रेंट, मतलब क्या कि सेट ऑफ वैल्यूज जो है अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ सॉरी डोमेन वैल्यू जो है वो हमने स्पेसिफाई किया उससे ही मैच होना चाहिए। वैल्यू ए इज नॉट अलाउड हियर इन द एज एज 004 राहुल जो है उसका एज ए अलाउड नहीं है, सिंस why because only integer values can be taken by the age attribute, so this is domain, उसको क्या बोलते हैं डोमेन। एज जो है उसका डोमेन वैल्यू क्या है, नंबर्स है। नेम है उसका डोमेन वैल्यूज क्या है कि कैरेक्टर्स होना चाहिए। स्टूडेंट आईडी का क्या है, जो आपने डिसाइड किया होगा, मतलब जो आपने डिसाइड किया होगा। फोन नंबर, तो फोन नंबर का डोमेन वैल्यू क्या होगा, नंबर्स ही होगा, उसमें हम लोग कैरेक्टर्स टाइप नहीं कर सकते। दिस इज द डोमेन वैल्यू। द डोमेन कंस्ट्रेंट मतलब क्या, जो वैल्यूज जो है ओके वो वैल्यूज कैसे होना चाहिए और डोमेन को मैच करता होना चाहिए। डोमेन कंस्ट्रेंट डिफाइन द डोमेन्स और सेट ऑफ वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट। डोमेन कंस्ट्रेंट डिफाइन द डोमेन और सेट ऑफ वैल्यूज। तो एज क्या डिसाइड करता है कि नंबर से होना चाहिए। नेम क्या डिसाइड करेगा, स्ट्रिंग ही होना चाहिए। नेम में आप 1 2 3 नहीं डाल सकते, जैसे का नेम 1 2 3 है, नो। ओके, स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट आईडी कॉम्बिनेशन हो सकता है कैरेक्टर्स एंड नंबर्स का। ओके, तो आपने यू विल डिसाइड द रेंज कैसे, यूजिंग द डेटा टाइप्स। कैसे करोगे, डेटा टाइप्स थ्रू आप उसका डोमेन रेंज जो है वो सेट करोगे। ओके, तो दैट इज फर्स्ट इज डोमेन कंस्ट्रेंट। तो ये डोमेन कंस्ट्रेंट आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, थ्रू दी डेटा टाइप्स। ओके, एज के लिए आप क्या डेटा टाइप डालोगे, इंटीजर और नंबर। नेम के लिए क्या डालोगे, वैरकर। स्टूडेंट आईडी के लिए भी वैरकर यू विल राइट। फोन नंबर के लिए भी यू विल राइट दी इंटीजर और number data type. So according to data type through you can maintain the domain constraint. You can apply the domain constraint. Okay. Now we have already done ये practical में करते हैं. Okay, student ID को we are given the integer. Otherwise अगर वो S001 ऐसा कोई किसी का ID है तो you can write the varchar भी लिख सकते हो. Then next is tuple uniqueness constraint. Okay, the next constraint is tuple uniqueness constraint. The tuple uniqueness constraint specify that all the tuples must be necessarily unique in any relation. Unique होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, unique होना चाहिए। records कैसे होना चाहिए, unique। tuples कैसे होना चाहिए, unique होना चाहिए। okay, in this table there are 3 columns, student id, name, age। that's 001 Akshay 20, 2 Abhishek 21, 3 Shashank 20, ID SS4 राहुल 20। तो जो ID है दैट इज यूनिक। ID है वो क्या है, यूनिक है, ठीक है। बट इन द सेकेंड टेबल यू कैन सी एक मिनट मैं एंटर करती हूँ आपको समझ में। ओके, नाउ कंसीडर दिस टेबल। इन दिस टेबल ID 001, ID 001। ओके, तो ये क्या हो रहा है, डुप्लीकेट रोज हो रहा है। ओके, डुप्लीकेट रोज हो रहा है। तो दिस रिलेशन डज नॉट सेटिस्फाई द टपल uniqueness constraint। tuple uniqueness constraint since here all tuples are not unique। okay, tuple जो है वो unique नहीं है। tuples मतलब क्या है, records। this is one record, this is one tuple, this is second tuple, this is third, this is fourth। total how many tuples, 4 tuples। okay, मैंने आपको पहले भी बोला था tuples and records rows are same। आप उसको rows भी बोल सकते हो, क्या 4 rows are there। ओके, आप उसको records भी बोल सकते हो, 4 records are there। आप उसको tuple वर्ड पे यूज कर सकते हो। so what is the meaning of tuple uniqueness constraint? The tuple uniqueness constraint specify that all the tuples must be necessarily unique in any relation। any relation मतलब कोई भी टेबल में जो tuples है वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। इस सेकेंड रूल, ये सेकेंड रूल है, ये रूल्स है जो डेटाबेस को फॉलो करना है। ओके, व्हाट इज द थर्ड, की कंस्ट्रेंट। the third constraint is key related constraint। key constraint, so already we have learned the key constraint specify that in any relation all the values of primary key must be unique। key constraint, all the values of the primary key must be unique। obviously वो automatically unique ही लेगा। if we are applying the primary key to any कॉलम या तो एट्रीब्यूट को हम लोग प्राइमरी की अप्लाई करें तो वी कैन नॉट एंटर द डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, तो दैट इज की कंस्टेंट। द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की मस्ट नॉट बी नल, वो भी हमको पता है। द वैल्यू ऑफ द प्राइमरी की मस्ट नॉट बी नल, उसको हमको नल भी नहीं रखना है। ओके, वो नल होगा भी नहीं। अगर आप उसको ब्लैंक छोड़ोगे ना एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द वैल्यू, इंसर्टिंग द वैल्यू,
तो इट कैन नॉट टेक द ब्लैंक वैल्यू, वो ब्लैंक वैल्यू नहीं लेगा, वो एरर देगा कि यू हैव टू एंटर समथिंग। तो वो की कंस्ट्रेंट है, दैट इज अ की कंस्ट्रेंट। ओके, सी हियर, consider following student S001 S001, ठीक है, 2 टाइम्स है। तो दिस रिलेशन डज नॉट satisfy the key constraint as here all the values of primary key are not unique। अगर हम प्राइमरी की असाइन करें तो दोनों नेम जो है वो सेम नहीं होगा, ठीक है, दोनों नेम जो है वो सेम नहीं हो, सॉरी आईडी जो है वो सेम नहीं होगा, नेम विल बी सेम, नेम मे बी सेम बट आईडी जो है वो यूनिक ही होगा। The next is entity integrity constraint. Okay, entity integrity constraint, next constraint we have already learned all this, ठीक है, ये हमने प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट भी हमने देखा, वो रूल भी हमने देखा, देन टपल यूनिकनेस भी हमने देखा, ठीक है। देन एट डोमेन कंस्ट्रेंट भी हम वी हैव ऑलरेडी लर्न कि जो हमने उसका क्या बोले डेटा टाइप डाल रहे उसके हिसाब से हमको वैल्यू एंटर करना है, ठीक है, अगर हम लोग वो वैल्यू नहीं डाले तो एरर डिस्प्ले हो रहा था। ओके ओके, नेक्स्ट क्या था, ये बाकी है ना, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई दैट नो एट्रीब्यूट ऑफ प्राइमरी की मस्ट contain a null value in any relation, this is because the presence of null value in the primary key violates the uniqueness property। ठीक है, ये भी सेम ही है कंस्टेंट, जैसे उसका नेम उन्होंने चेंज कर दिया। ओके, यहाँ पे उन्होंने स्टूडेंट आईडी जो प्राइमरी की डिफाइन किया उसको ब्लैंक छोड़ा है, तो अगर हम लोग ब्लैंक छोड़ रहे तो वो क्या होगा, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायोलेट करेगा। ओके, मतलब वो अपोज करेगा, एंड ऑब्वियसली अगर हम लोग आईडी को प्राइमरी की असाइन करें तो उसको हम लोग ब्लैंक छोड़ ही नहीं सकते, बिकॉज वो ब्लैंक वैल्यू इट विल नॉट टेक एट द टाइम ऑफ इंसर्टिंग। तो दिस रिलेशन मतलब ये टेबल does not satisfy the entity integrity constraint as the primary key contains a null value। इसमें प्राइमरी की नल दिखाया, तो ये जो टेबल है, ठीक है, वो टेबल एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, ये ऑल दिस जो कंस्ट्रेंट्स है ना ऑटोमेटिकली फॉलोड बाय द MySQL और SQL सॉफ्टवेयर, जो भी रिलेशनल डेटाबेस के जो सॉफ्टवेयर है ना वो सारे सॉफ्टवेयर ये रूल्स फॉलो करते हैं, ठीक है, वो हमने देखा। ओके, the next is referential integrity constraint। the next is referential integrity। foreign की जो है ना, foreign की को reference की भी बोलते हैं। the next other name of foreign key is the reference key। okay, foreign key को क्या बोलते हैं, reference key भी बोलते हैं। other name for the foreign key is the reference name, sorry reference key। this constraint enforced when a foreign key reference the primary key of the relation। it specifies that all the values taken by the foreign key must either be available in the relationship of the primary key or be null। okay, yes, ये भी हमने देखा। for example मैंने आपको दिखाया था कि there is student table, student ID, name, department number, and one more table is the department table। department table में department number and department name and number are there। okay, तो department number in the student table is a foreign key and department number in department table is a primary key। okay, तो जो भी departments we have entered in department table ना, वही department number कहाँ पे होना चाहिए, in the student table में। for example in our college there are 4 departments, BMS, IT, BCom and BMM। okay, अगर BAF नहीं है तो here student cannot write the BAF department। why? because दोनों टेबल कनेक्टेड है, अगर यहाँ पे वो BAF लिखने जाएगा ना तो एरर विल बी अकर। why? क्योंकि ये डिपार्टमेंट नंबर कहाँ से आ रहा है, डिपार्टमेंट टेबल में से आ रहा है। वी आर कनेक्टिंग दिस टू टेबल्स, तो वी कैन राइट हियर ओनली दोस डिपार्टमेंट नंबर दोस नंबर्स आर अवेलेबल इन द डिपार्टमेंट। ओके, जो डिपार्टमेंट टेबल में होगा वही डिपार्टमेंट नंबर वी कैन यूज इन द स्टूडेंट टेबल। व्हाई? बिकॉज वी आर कनेक्टिंग दिस टू टेबल यूजिंग द डिपार्टमेंट नंबर। तो दोनों डिपार्टमेंट में जो होगा, सॉरी डिपार्टमेंट टेबल में जो डिपार्टमेंट होगा वही डिपार्टमेंट वी कैन यूज इन स्टूडेंट टेबल। तो दिस इज अ क्या है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ओके, हमने ऑलरेडी देखा ये चीज, ये ऑलरेडी कवर्ड इन दी कीज में हम लोगों ने ये देखा था, बट उन्होंने एज अ कंस्ट्रेंट एज अ रूल्स हमको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो वी नो दैट रूल्स। ओके, क्या लिखा है, स्पेसिफाई दैट ऑल द वैल्यूज टेकन बाय द फॉरेन की। ओके, मतलब यहाँ पे जितना भी वैल्यूज जो है, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर का जो भी वैल्यूज है वो आइदर डिपार्टमेंट के टेबल में से आएगा, अदरवाइज उसको नल हम लोग रखेंगे, बट डिपार्टमेंट नंबर जो है वो डिपार्टमेंट टेबल में होना ही चाहिए। ओके, इट मस्ट बी देयर इन डिपार्टमेंट टेबल। व्हाई? बिकॉज इट इज अ फॉरेन की इन स्टूडेंट टेबल एंड इट इज अ प्राइमरी की इन द डिपार्टमेंट टेबल। एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। सी, टू टेबल इज गिवन हियर, स्टूडेंट आईडी, सॉरी स्टूडेंट टेबल, डिपार्टमेंट टेबल।
इन स्टूडेंट टेबल देयर आर 3 कॉलम, आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट नंबर है। ओके, बट नाउ ये डिपार्टमेंट नंबर जो है वो कहाँ से आ रहा है? डिपार्टमेंट टेबल में से आ रहा है। डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर 10, 11, 12 एंड डिपार्टमेंट नेम दिया हुआ है, कुछ तो नेम दिया हुआ है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट नंबर क्या है? 10, 11, 12। तो स्टूडेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर क्या होना चाहिए? 10, 11, 12 में से कोई होना चाहिए। यहाँ पे दे एंटरिंग D14, तो दिस इज अ वायोलेटिंग ऑफ द रूल्स, ठीक है। ये रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, वायोलेट यहाँ पे हो रहा है। वाई? बिकॉज 14 डाला है, बट 14 तो डिपार्टमेंट टेबल में है ही नहीं, तो वी कैन नॉट एंटर दी 14। जब आप 14 एंटर करने जाओगे तो इट गिव्स द एरर एट द टाइम ऑफ रनिंग द क्वेरी, ठीक है। वो आपको एरर देगा कि यू कैन नॉट एंटर D14। वाई? बिकॉज D14 इज नॉट कंटेन इन द डिपार्टमेंट टेबल। क्यों ऐसे? बिकॉज वी आर कनेक्टिंग टू टेबल यूजिंग द फॉरेन की एंड प्राइमरी की। अगर आप करने भी जाओगे हियर एंटरिंग D14, तो इट विल नॉट टेक 14 एज ए डिपार्टमेंट नंबर, इट गिव्स द एरर। क्या एरर देगा कि सॉरी, क्या एरर देगा कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट रूल्स वायोलेट, ऐसे कुछ एरर डिस्प्ले होगा। तो ये जो है दैट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ओके रूल्स। जब हम लोग फॉरेन की का प्रैक्टिकल करेंगे देन यू विल गेट द आइडिया कि यस, ये दोनों टेबल में वैल्यूज हम लोग कॉमन ही डालना पड़ेगा फॉर द डिपार्टमेंट के लिए। डिपार्टमेंट नंबर इज द फॉरेन की एंड डिपार्टमेंट नंबर इन डिपार्टमेंट प्राइमरी की, दोनों में कॉमन ही होना चाहिए, ठीक है। D10, अगर कोई स्टूडेंट है तो यहाँ पे D10 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 D10, और स्टूडेंट्स आर बिलोंग टू डिपार्टमेंट D10 तो चलेगा, और स्टूडेंट्स बिलोंग टू डिपार्टमेंट D1 तो 11 तो भी चलेगा, 12 तो भी चलेगा, बट 14 15 ये तीनों छोड़ के और कोई वैल्यूज वी कैन नॉट एंटर फॉर द डिपार्टमेंट नंबर। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? we have already learned this in फॉरेन की में हमने देखा वही है। why? because कौन सा कंस्टेंट है, कौन सा रूल है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट। एंड फॉरेन की को क्या बोलते हैं? रेफरेंस की। ओके, यू कैन आल्सो से रेफरेंस की भी बोल सकते हो फॉरेन की को। तो फॉरेन की एंड रेफरेंस की बोथ आर द सेम, सिमिलर वर्ड्स है, आप उसको कोई भी यूज कर सकते हो। यस और नो? ओके, तो आपको क्या याद रखना है? व्हाट इज कंस्टेंट? Constants means set of rules, okay, which are defined by the DBMS database, relational database. Okay, types of constant in DBMS: domain constant, tuple unique। domain मतलब क्या? जो वैल्यूज जो है, एट्रीब्यूट्स का वैल्यू जो है, जो स्पेसिफाई किया है वही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल फोन नंबर इंटीजर दिया है तो इंटीजर numbers must be there in the values, okay, and we cannot enter the characters। and ये हम लोग कैसे अचीव करते हैं? through the data types, okay, we are assigning the data types to the attributes at the time of creation the table। second क्या है? tuple uniqueness constraint, okay, tuple uniqueness constraint, tuple जो है records जो है that must be unique, वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, दैट इज सेकंड रूल है, सेकंड कंस्ट्रेंट है कि जो रिकॉर्ड्स है, जो रिकॉर्ड्स मस्ट बी यूनिक। द थर्ड इज की कंस्ट्रेंट, ओके, इफ वी आर अप्लाइंग दी प्राइमरी की, तो प्राइमरी की मस्ट नॉट बी नल, नल नहीं होना चाहिए प्राइमरी की। तो वो तो व्हेन वी अप्लाइंग दी प्राइमरी की, तो वैसे भी हम लोग उसको नल नहीं डाल सकते, दैट इज अ की कंस्ट्रेंट उन्होंने बोला है। एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ओके, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, जो डेटा जो है that must be enter valid data, ठीक है। एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्टेंट मतलब क्या? जो हम लोग एंटर कर रहे हैं डेटा प्राइमरी की, जो सॉरी क्या मेंशन किया है कि प्राइमरी की जो है वो नल नहीं होना चाहिए, ओके। प्राइमरी की मस्ट कंटेन ए नल वैल्यू रिलेशन, नो एट्रीब्यूट ऑफ प्राइमरी की, ओके, मतलब प्राइमरी की मस्ट नॉट बी नल, प्राइमरी की नल नहीं होना चाहिए, दैट इज उन्होंने बताया एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्टेंट में। एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में क्या बोला है कि प्राइमरी की नल नहीं होना चाहिए, वो हमको पता है कि नल देगा भी नहीं, ओके। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मतलब कि जो फॉरेन की जो हमने बनाया है उसका वैल्यू क्या होगा? जो प्राइमरी की का वैल्यू होगा वही होगा। डिपार्टमेंट नंबर इज अ प्राइमरी की डिपार्टमेंट टेबल, इसमें जो वैल्यूज है सेम वैल्यूज वी हैव टू एंटर इन दिस स्टूडेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर के लिए। डिपार्टमेंट नंबर स्टूडेंट टेबल में क्या है? फॉरेन की है। तो ये रूल्स जो उन्होंने बताया, तो दिस ऑल आर दी कंस्ट्रेंट, ठीक है। दिस इज ये थियरी कंस्ट्रेंट्स है, हम लोग प्रैक्टिकली कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली परफॉर्म करने। इसमें से हमने ऑलरेडी वी हैव ये डोमेन कंस्ट्रेंट हम लोग वेयर के डेटा टाइप थ्रू हम लोग अचीव कर रहे हैं।
टपल यूनिकनेस कंस्टेंट जो है वो ये है बच्चे थ्री प्राइमरी की अप्लाई करके हम लोग कर रहे हैं। ओके, बाकी जो की कंस्टेंट बचा के नॉट नल नहीं होना चाहिए या तो यूनिक होना चाहिए, ऑल दिस कंस्टेंट जो प्रैक्टिकली जो कंस्टेंट्स है दैट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, इन द टुमारोज लेक्चर वी विल लर्न द कंस्टेंट विद द प्रैक्टिकल के साथ हम लोग देखेंगे। आज थियरी के साथ किया, टुमारो वी विल लर्न द प्रैक्टिकल्स ओके ऑफ द कंस्टेंट। Okay, chalo now in the last lecture, which commands we have completed, students? Which commands we have completed in the last lecture? Who will tell? चलो जल्दी से कौन से कमांड्स किए हमने लास्ट लेक्चर्स में? यस्टरडे किया था प्रैक्टिकल ना। चलो कौन से कमांड्स किए हम लोगों ने? जल्दी से बताओ, which commands we have learned yesterday? यस्टरडे नहीं, उसके पहले आई थिंक हमने किया ना, कल तो हमने रिविजनल अलजेब्रा किया। हाँ, उसके पहले वाले लेक्चर्स में प्रैक्टिकल, इन द प्रैक्टिकल सेशन व्हिच कमांड वी हैव? कमांड। ये बताओ मुझे, सारे कमांड्स के नाम बताओ, अभी तक जो भी कमांड्स हमने किए, गिव द नेम्स ऑफ ऑल द कमांड्स। rename, update, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय, यस, और एंड और। बताओ बताओ, तो बराबर बोलियो। अपडेट। यस, गुड। अपडेट भी किया हम लोगों ने, अल्टर किया, अपडेट किया, क्रिएट, लाइक क्लोज। Modified. लाइक, यस insert, यस, ओके, ठीक है, तो insert, delete. yes, okay, very good. So all these commands we have already done in the DBMS, sorry, MySQL. Okay, so all of you must know all the commands and syntax of these commands. Okay, syntax पता होना चाहिए, what is the syntax, क्योंकि if अगर आप सेमीकोलन करना भी भूल गए तो भी error will comes। insert का spelling wrong लिखा, create का spelling CREATE अगर मिस करो, small mistakes भी करोगे ना at the time of writing the query, so error will comes। okay, तो आपको बहुत carefully you have to write the programs in MySQL। yes, कोई स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था, मैम प्लीज हमको दिखाओ कि हाउ टू इंस्टॉल। ओके, आप इंस्टॉल करो। ओके, सेटअप जो है नहीं आ रहा है, इसमें प्रॉब्लम, तो हम लोग स्क्रीन शेयर करेंगे, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। यस, कोहिनूर आपका हो गया, कल कर रहे थे ना आप, इंस्टॉल हो गया? यस मैम। हो गया ना इंस्टॉल, रन हो रहा है? यस मैम। ओके, वेरी गुड। हबीबा, और किसने किसने इंस्टॉल किया है सिस्टम में? हबीबा का हो गया, हबीबा इज देयर इन द लेक्चर? यस हबीबा, हुआ कि नहीं इंस्टॉल? बाकी स्टूडेंट्स, कोई स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था, मैम लेक्चर में दिखाओ। अगर हम लेक्चर में दिखाओगे तो इट विल टेक मोर टाइम, ठीक है, तो उससे अच्छा बेटर क्या है कि आप लोग आपके सिस्टम में रन करके देखो, कोई इश्यू आ रहा है तो मुझे स्क्रीन शेयर करो। क्यों नहीं हुआ हबीबा, क्या प्रॉब्लम है? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम ना, तो आप स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाओ, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगी। ओके, क्योंकि ऑलरेडी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, अगर मैं उसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करूँ तो वो बहुत टाइम ले रहा है मेरे सिस्टम में। तो अगर किसी के सिस्टम में इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो वो सेटअप डाउनलोड करके रखो। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्क्रीन शेयर करके उनके उसके सिस्टम में रन करके देखेंगे, तो सबको दिखाई देगा। यस, किसके सिस्टम में करना है? किसके सिस्टम में करते हैं रन? जिसके पास अवेलेबल है वो बताओ मुझे। तो सेटअप जो मैंने दिया था इंस्टॉल, उसको डाउनलोड करके रखो, वी विल इंस्टॉल, हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो डिसाइड करके रखो, नेक्स्ट लेक्चर में बताओ मुझे कि कौन कर रहा है, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? फोन में मैम, फोन में होता है क्या? अरुण, फोन में हो रहा है? फोन में क्या यूज कर रहे हो आप? कौन सा यूज कर रहे हो फोन में? विच सॉफ्टवेयर? W3 स्कूल में है। हाँ, वहाँ पे तो होगा, W3 स्कूल में तो होगा वो, तो जैसे हम लोग लास्ट टाइम वी आर डूइंग ना फॉर HTML के लिए, वैसे W3 स्कूल में होगा, नो इश्यूज, वैसे भी कर सकते हो। सरप्राइज यू कैन डू इन द W3 स्कूल्स। ओके, उसमें आप करो तो भी चलेगा। यस हबीबा, कोई बात नहीं, टुमारो यू कैन स्टार्ट द स्क्रीन। ये सरफराज आपने दिया उसमें भी हो रहा है क्या?
10 मार्क्स करके कुछ है। नो मैम, पहले किया था तो एक बार एग्जीक्यूट हुआ, बाद में जब मैम ऐप क्लोज कर दिया फिर ओपन किया तो मैम नहीं बता रहा है। नहीं बता रहे हैं तो छोड़ो, फिर W3 स्कूल्स में ही यू कैन राइट, ठीक है, उसमें करो तो हो जाएगा। देखो क्योंकि सिस्टम नहीं तो वी हैव टू अरेंज समथिंग ना, कुछ तो हमको करना पड़ेगा। थोड़े एक दो क्वेरीज भी परफॉर्म एक बार किया तो हो जाएगा ऐसे, अगर बिल्कुल नहीं किया तो फिर ऊपर से जाएगा सब कुछ। ओके यस, एंड व्हाट अबाउट द Okay, ma'am. असाइनमेंट, व्हाट अबाउट द असाइनमेंट ऑफ यूनिट 1 एंड यूनिट, हाँ यूनिट 1 कंप्लीट किया? व्हाट अबाउट द असाइनमेंट्स? असाइनमेंट लिखो एंड अपलोड करो इन द गूगल क्लासरूम में। ओके, अपलोड द असाइनमेंट इन गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट अपलोड करो, आई विल चेक। ओके, वहां से मैं चेक कर लूंगी। तो विद इन 2 to 3 days, आज क्या है? ओके, बाय संडे, ओके संडे इवनिंग तक प्लीज सबमिट योर असाइनमेंट इन गूगल क्लासरूम। विच असाइनमेंट के क्वेश्चंस कौन से है? द टॉपिक्स व्हिच वी हैव कवर्ड इन लेक्चर यूनिट 1। ओके, यूनिट 1 में जो भी टॉपिक्स हमने कवर किया वो सारे टॉपिक्स यू हैव टू राइट एज अ असाइनमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? असाइनमेंट 1 and in assignment 2 the topics which we have covered in unit 2 ना, that you have to write it as a assignment 2 आपको लिखना है। if you are writing during the lecture time तो भी चलेगा। ओके, एंड प्रैक्टिकल सेशन में जो क्वेरीज हमने किया था that queries you have to write। ओके, प्रैक्टिकल सेशन में जो हमने क्वेरीज किया था वो क्वेरीज आपको लिखना है। आई हैव ऑलरेडी सेंड दी फाइल जो था वो फाइल मैंने सेंड कर दिया है आप लोगों को, ठीक है? क्लियर? Yes, ma'am. Okay, चलो, now anyone has any doubt? Tomorrow we will learn the practicals, ठीक है? प्रैक्टिकल्स हम लोग इसका कल करेंगे। ओके यस। Okay, ma'am.